देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ। तो सब तो पहला काम ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। तो इसदियाँ वैल्यूज़ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ x और y। पहले इतने x अगर आप 0 पुट करिए तो 2y इक्वल्स टू 120 और y आ जाएगा 60। तो एक x 0 है तो y आ गया 60। फिर y 0 ले लिया करो। अगर y 0 लवांगे तो इतने देखो ये ख़त्म हो गया, x इक्वल्स टू कितना हो गया 120। लो जी वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 ले लो। ठीक, इतने एक्स वाई, एक्स 0 है, वाई आ गया 60। अगर वाई 0 लाओगे एक्स आ जाएगा 60। ये भी हो गया। उस तो बाद एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इत्थे स्टूडेंट्स इत्थे तुसी एक्स 0 पुट करते हो, 0 पुट करते हो तो माइनस 2y इक्वल्स टू 0, माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। 0 आ गया। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ 0 ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ y 0 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x 0 ਹੈ ਹੀ ਹੈ। तो x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਓਗੇ? ਐਸੀ ਵੈਲਿਊ ਲਓ, ਜੇ 1 2 ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਕੇਲ ਲਈ ਹੈ 60 120 180 60 120 180 ਰੀਜ਼ਨ ਸੋ ਔਨ। ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 और 2 ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। तो ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ? ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ y ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 60 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। y 60 ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ 60 ले लिया तो x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, राइट। बाकी ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ हैं x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन हो गया, वो पॉजिटिव कंसट्रेंट्स होंगे है हमेशा। तो इन्हों आप फटाफट प्लॉट कर लेंगे। सब तो पहला की है 0 60 120 0। लो 0 60 ये पॉइंट आ गया 0 60 और 120 0 आ पॉइंट आ गया 120 0। और ये लाइन तुसी प्लॉट कर लेनी है। प्लॉट करन दे नाल एक काम होर कर लेना कि इसका हाफ प्लेन किहड़े पासे जिहड़ा है लाई करेगा। ठीक, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ 0 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 0 0 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, तो इससे टेस्टिंग पॉइंट 0 0 ले लो। 0 0 मतलब x 0 पर आए थे 0 आ गया प्लस 2 इंटू 0 0 लैस दैन इक्वल्स टू 120। तो देखो जोड़ा 0 है 120 तो लैस होंगे, ट्रू है, दिस इज़ ट्रू। तो ये वाला एरिया केड़ा वाला तुसी शेड करोगे, केड़ा वाला शेड कर दोगे? ये रीजन जोड़ा है तुहाडा आ वाला रीजन, इस ओरिजिन वाले पासे 0 0 वाले पासे ये शेड हो गया, आ वाला रीजन आ गया जी, राइट। उस तो बाद सेकंड देखो x 0 y 60 x 0 y 60 आही आ गया जी। नेक्स्ट x 60 y 0 x 60 y 0 60 0। ठीक, तो नाल दी नाल इसनूं प्लॉट कर लिया करो, नाल दी नाल प्लॉट करया करो। ये आ गई जी लाइन। ठीक, और कोशिश करा करो लाइन जी आप नाल दी नाल लिख दिए, बहुत वधिया है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 है और ये वाली लाइन सी तुहाडी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 120। ठीक है, हुण इसका हाफ प्लेन लेना पऊगा आपां नूं। फिर 0 0 ना चैक कर लो, किस च पुट करोगे? इस च पुट कर लो, इस दी इनइक्वालिटी टेस्टिंग वास्ते इस दी 0 और 0 ग्रेटर दैन 60 नो, फॉल्स हो गया। ग्रेटर नहीं होता तो ये फॉल्स हो गया। इट मीन्स
ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਾਫ ਪਲੇਨ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਰੀਜਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਰੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਮਨ ਰੀਜਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ, x minus 2y equals to 0 ਦਾ 0 0 this one, और फिर x 20 120 x 120 y 60 x 120 और y है 60 here। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜਿੱਥੇ 0 0 ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 0 0 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 60,0, ਠੀਕ ਹੈ। 60,0 ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ 60,0। ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ x minus 2y equals to 0, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ 60,0। 60,0 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। 60 minus 0 is greater than 0, ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ। 60 greater than 0 ਹੁੰਦਾ, ਟਰੂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। तो इसका रीजन इस पासे आ गया, इस पासे आ गया, पर आप तो कॉमन चाहिए। तो कॉमन वाला रीजन जिहड़ा तीनों कंस्ट्रेंट्स का हैगा वो ये वाला आ रहा है, जिहड़े 4th ते 5th तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुंदा ही है। तो आ वाला रीजन जिहड़ा है साडा फिजिबल रीजन आ गया, क्योंकि ये बाउंडेड रीजन आ गया, ठीक। इसनूं तुसीं नेम कर लेना है, इसनूं नेम कर लेने आपां पॉइंट्स नूं A B C D। और मैं तुहानूं बेटे दस देना, ये पॉलीगॉन जिहड़ी बनेगी कन्वैक्स पॉलीगॉन बनती है। कुछ भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकती है, हेक्सागन भी हो सकती है, पर फिलहाल क्वाड्रिलेटरल अपने कोल बनी है A B C D। तो साडे कोल जिहड़ा बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड रीजन वो किहड़ा आ गया A B C D। और कॉर्नर पॉइंट्स फिर लिखने आपां ने, कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं A B C और D। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स कुछ तो सानू सीधे मिल जाएंगे, किवें आ देखो 60,0, ये पॉइंट 60,0 है, ये पॉइंट है 120,0। A और D सानू मिल गए, 60,0 और D है 120,0। प्रॉब्लम कित्थे रह गई, प्रॉब्लम रह गई अपने कोल B और C दी। तो इत्थे देखो फिर की होएगा, हुण देखो B किहड़ी लाइन है, x plus y equals to 60, और इत्थे B ते जो इंटरसेक्शन हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किहड़ी लाइन का इंटरसेक्शन है, एक आ लाइन है x minus 2y equals to 0, ठीक। तो दो लाइन्स आ गई, किहड़ियां आ गई आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखो आप किवें कढ रहे हैं। सब तो पहला B का कढ रहे हैं, B का कढण वास्ते साडे कोल इक्वेशन की है, x plus y equals to 60 और x minus 2y equals to 0, ठीक है। सबट्रैक्ट कर दो, माइनस ये पॉजिटिव हो गया, माइनस 3y equals to 60, y equals to आ गया 20। हुण y equals to 20 तुसीं इस पुट कर दो इस इक्वेशन च, x plus 20 equals to 60, तो x आ गया 40। तो पॉइंट B दे कोऑर्डिनेट्स आ गए 40,20, चेक कर लो, 40 + 20 60 है, ठीक है। तो B दे कोऑर्डिनेट्स 40,20 आ गया। हुण आ गया C किद्दां आएगा, देखो ये लाइन है x minus 2y equals to 0, और ये वाली लाइन किहड़ी है x plus 2y equals to 120। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C अगर निकालना है, C वास्ते x minus 2y equals to 0, x plus 2y equals to 120, राइट। तो देखो ये तो सीधा ही ऐड करांगे तो कैंसिल हो रहा है, ऐड कर दे, तो ऐड करते हैं, साइन चेंज नहीं करने,
2x equals to 120, this implies x equals to ਆ ਗਿਆ 60। ਹੁਣ x 60 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। 60 plus 2y equals to 120, 2y equals to 60 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ 60, y equals to ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ C ਦੇ ਆ ਗਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 60, 30, 60, 30। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5x plus 10y, ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5x ਹੈ 60, y ਹੈ 0, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 300। ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 40, 20 ਦੇ ਉੱਪਰ 5, 40, 10, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 20, 200 plus 200 400 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 5, 60 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ 10 into 30, 300 plus 300 600 ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ 5, 120, 0, तो दिस इज 600 अगेन। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, दिस है। तो इत्थे तुहाडी मिनिमाइज हो गया, ये मिनिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। और इन्हां दो वैल्यूज़ ते तुहाडा की हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ये मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स ते है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी, तो ये देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन असी मिनिमाइज कर दिता। प्रैक्टिस इट, होर भी क्वेश्चंस ट्राई करो।